جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے۔ حدیث ہے بیہقی شریف ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے، امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیب میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الحدیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا، حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا، اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا، اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بیہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، اور عالم عظیم دورمائے دیوبند کے علامہ انور شاہ کشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی، کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو 2 ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب سویبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا، اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ وہ کافر ہی نہیں، کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے، اور اس نے جو آزاد کیا سویبہ کو وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر۔ اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب صحیح، بدبخت صحیح، پر میرے محبوب کا میلاد تو منایا ہے، اور خدا
जो उसके मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाता है, उस पर सदका और खैरात करता है, चरागा करता है, वलायम करता है, अपनी खुशियां मनाता है, खुदा की इज्जत की कसम रब्बे कायनात उसे बख्शिश का फरमाना अता कर देगा। आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल का आगाज हो चुका है, दूसरी तारीख खत्म हुई और आज हम तीसरी शब में इस वक्त यहाँ बैठे। ये माह मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है। हुजूर की विलादत बासआदत भी इसी माह मुबारक में हुई, अगरचे तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। हुजूर का इंतकाल भी इसी माह मुबारक में हुआ और वो मुत्तफक अलैह तारीख है 12 रबीउल अव्वल असल में हुजूर का यौम वफात है। और अक्सर मुहक्किकीन की राय यह है कि आपका यौम विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल है। यही वजह है कि मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस दिन को जो लोग कुछ थोड़ा बहुत मनाते भी थे तो 12 वफात के नाम से दर हकीकत ये नाम याद किया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, कुछ खाना पकाकर कुछ गरीबों को मसाकीन को खिलाना, ये दर हकीकत चीज थी कि जो अब होते होते उसने बहुत ही एक दूसरी सूरत इख्तियार कर ली है। ये एक जश्न बन गया है और एक ईद का सा समा। बल्कि वाकया ये है कि जो असल 2 ईदें हैं वो कहीं पीछे चली गई हैं और ये जो 2 ईदें हमने इजाद की हैं, एक ईद मिलादुन नबी और एक ईद इस्तिक़लाल, अगर हम जायजा लें तो शायद ये 2 जो है ये ज्यादा फोरग्राउंड में आ चुकी है। लेकिन ये कि जहां तक आपकी विलादत और आपके वफात का इस माह मुबारक में होना है वो साबित है। मदीन बरा हुजूर का वुरूद मदीना मुनव्वरा में भी माह रबीउल अव्वल में हुआ है। इस पहलू से अगर इस माह मुबारक में हम सीरतुन नबी के मुतालिक एक खास मौजू रखें, किसी तारीख के तयन के बगैर इस महीने की मुनासबत से सीरत मुतहरा पर गुफ्तगू हो, गौर व फिक्र हो और उसमें भी अमली पहलू सामने हो, इत्तिबा का जज्बा हो, समझना समझाना इसलिए हो कि उस पर अमल करना है, तो यकीनन ये चीज हमारे लिए बहुत मुफीद होगी और हमारे बहुत से अमराज का शायद इससे मदावा हो सके। याखुलून बिसुन्नतिही व यक़दून बिअमरिही सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बअदिही ख़ुलूफ़ुन। फिर हमेशा ये होता, हर नबी का जानने वालों में, पहचानने वालों में, मानने वालों में हुआ है। उम्मत मोहम्मद भी मुस्तस्ना नहीं है। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून। यहाँ नोट कीजिए कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे, करते वो थे जिसका हुक्म नहीं। ईद मिलादुन नबी क्या हुजूर का हुक्म है? क्या इसका कोई सबूत सहाबा से है? क्या हम सहाबा के मुकाबले में हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? लेकिन था कि मोहब्बत माला युमरून, जिसका हुक्म हुआ नहीं उस पर अमल हो रहा। ये है दर हकीकत रस्म परस्ती और रस्म के अंदर फिर इजाफा होते चला जाता है, उस पर रदे पर चढ़ते चले जाना जो है। ये दूसरा सबब है और इसका एक नतीजा जो निकलता है वो उसी पर बात खत्म करूंगा। अगरचे एक और हदीस जो है इस मौजू पर बहुत अहम है। नतीजा क्या निकलता है? जहां बिदअत आएगी सुन्नत रुखसत हो जाएगी। अब नमाज जनाजा की वो अहमियत नहीं होगी, न नमाज जनाजा याद करनी है, न दुआ याद करनी है, कुछ पता नहीं, जाके खड़े हो गए हैं, वुजू भी है कि नहीं है, लेकिन कुरान खानी में तो जाना ही जाना। ये क्यों होता है? वरना यह कि नमाज की अहमियत होती, नमाज जनाजा की। आप अगरचे अरबी नहीं आती लेकिन तर्जुमा तो उस दुआ का आप याद कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ताकि खड़े हो दिल से दुआ मांगे। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं एक जुमला एक मफहूम का तारीफ कर रहा हूँ। मुझे उन मलंगों से बड़ा प्यार है जो गली कूचों में, बाजारों में, शाहराहों में, रोड रस्तों पर, मार्केटों में कहते फिरते हैं आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। जहां मुझे मौलवी की आवाज नहीं जाती वहां वो मलंग बैठे गुलाबे पहन के डंडा उठाकर बता रहा हूँ, यकीन जानिए आज नहीं कल सब इसी दरवाजे पर आएंगे। तुझे ना पसंद है वो काम छोड़ दे, जो तुम्हें ना पसंद है वो काम छोड़ दे, दीने खुदा की राह में ओ हम छोड़ दे। इस्लाम की असास है हमारे अली का नाम, या तो अली को मान या इस्लाम छोड़ दे। जिस अहम तरीन उन्वान का ताल्लुक किसी दिन से हो जाए तो उस दिन को रोजे निस्बत के तौर पर मनाया जाता है। कुरान मजीद क्या कह रहा है? वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। याद करो मेरे हबीब, जब हमने आले फ़िरऔन से आले याकूब को निजात दी। अज़ीज़ान गिरामी, जो आप 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं ना, ये यौम आज़ादी है ना, यौम निजात है ना, ये छुटकारे का दिन है ना, ये कुफ्र से छुटकारे का दिन है, इस्लाम से वाबस्तगी के दिन है। इस निस्बत की वजह से हम इसे खुशी मनाते हैं।
जब हजरत मूसा आले याकूब को लेकर चले, फिरौन से मामला ये दबाया कि हम इस शहर को छोड़ देते हैं, जुल्म ज़्यादती इंतहा को थी कि हम इस शहर को छोड़ देते हैं, हमें इस मुल्क से जाने दो। पहले तो उसने मान लिया। जब सारी कौम को हजरत मूसा लेकर चले तो इसने अपने सिपाहियों को जमा किया, अपने जर्नैलों को जमा किया, कहीं रास्ते में मार और खुद सलाही करके चले गए। हजरत मूसा को रास्ते में मालूम हुआ कि पूरा लश्कर पीछे आ रहा है, जितने लोग आले याकूब थे उससे कहीं ज्यादा वो सिपाही हैं मारने आ रहे हैं। हजरत मूसा को रास्ता देना था लंबा, लेकिन जब देखा पीछे लश्कर आ रहा है मारने के लिए, तो हजरत मूसा को हुक्म इलाही हुआ कि दरिया नील की तरफ जाओ। दरिया नील की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते हर कदम पर ये ख्याल तो आ रहा होगा ना कि नील में तो कोई रास्ता नहीं है, हम भूले। लेकिन मुबाहिर तो उसी को कहते हैं ना जो अपने मालिक की बात को मानता हो। मुसलमान तो उसी को कहते हैं ना जो अपने मालिक की बात मानता हो। पहुंचे हैं हजरत मूसा अपने पूरी कौम को लेकर नील के किनारे तक। क्या करें? हजरत मूसा को आवाज आई, इसके ऊपर आसा मारो। हजरत मूसा ने नील के ऊपर आसा मारा, एक मरतबा रास्ता बन गया। वो सारी कौम दरिया के अंदर उतरी और उस तरफ से निकलने लगी। हजरत मूसा की कौम का आखिरी फर्द निकल रहा था और फिरौन के लश्कर का आखिरी फर्द दरिया में उतर रहा था। जब ये मंजर बना तो एक मरतबा अल्लाह का हुक्म हुआ, वो पानी आपस में मिल गया और फरमाने वो पानी आपस में मिल गया। अच्छा, किसका बड़ा सीन है ये? बेटा था फिरौन के लश्कर में, बाप था हजरत मूसा के लश्कर में। बेटे ने बाप को आवाज दी तो बाप बेटे की खातिर कुछ पलटा गया, वो डूब गया। था वो मूसा के लश्कर में, मगर औलाद की मोहब्बत में डूब गया। अजीजाने गिरामी, रास्ता एक था, रहबर दो थे। एक की रहबरी में डूब रहे हैं, एक की रहबरी में निजात पा रहे हैं। तो हमें रास्ता नहीं देखना, रहबर देखना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जिस रास्ते की सरबराही मूसा ना कर रहे हो, जिस राह की सरबराही और रहनुमाई मूसा ना कर रहे हो, वो राह पे लोगों ने क्या हुआ? अब जिस दिन निजात मिली ना, अरे आपको तो कुरान कह रहा है वो एक चैन आपको मिला, उस दिन को याद करो। ये आले याकूब के लिए यौम निजात है, यौम आजादी है। आले याकूब के लिए यौम आजादी है। तो किस चीज से आजादी मिली? मौत से आजादी। मौत से आजादी ज्यादा अहम है या गफलत से आजादी ज्यादा है? जो लोग गाफिल होते हैं वो चलती फिरती मैयतें होते हैं। कौन सी आजादी ज्यादा है? बदन से आजादी, मौत से आजादी। मरे नहीं, कितने दिन तक रहे? आले याकूब कितने दिन तक रहे? आले याकूब कुछ अर्से बाद उनको सभी मर गए, बाज नहीं है। वो लोग नहीं है जिनके पीछे फिरौन चल रहा था। तो कौन सी आजादी ज्यादा है हमें? फिक्र की आजादी, गफलत से आजादी, अकीदे की आजादी। जब हजरत यूसुफ रहे जिंदान में तो तवील सजदा अदा करके जिंदानियों से, कैदियों से विदा कर रहे थे। तो एक कैदी, एक सिपाही ने आकर कहा, ऐ यूसुफ, यहाँ आके तो लोग रोते हैं, तुम यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हो? कहने लगे वो जो महल था वो जिंदान था, क्या कहते हैं? और ये जो जिंदान है ये आजादी है, जहाँ मैं अपने अकीदे पर ही अमल न कर सकूं। वो आजादी नहीं है, वो जिंदान है। फिक्र की आजादी। अब आप तवज्जो चाहूंगा आपसे, सरकार की आमद से फिक्रों को आजादी मिली है। यानी बदन को आजादी मिले तो कुरान उसे यौम आजादी मनाए, और फिक्रों को आजादी मिले तो ईद मिलादुन नबी मनाना बेहतर। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारी फिक्रों की आजादी का दिन करार दिया गया है। क्या वजह है कि हम ईद मिलादुन नबी नहीं मनाते लेकिन यौम पाकिस्तान मनाते हैं, आजादी पाकिस्तान का दिन मनाते हैं? तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस कायनात की तारीख में सबसे बड़ा अजीम दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबा किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया, और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ात वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है, और हज़रत सहाबा किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी यह दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज ना मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय
सारी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदअत कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हादा फहुवा रद्द, तो वो बिदअत बन जाता है, क्योंकि वो एक मजहबी मामला है। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आज़ादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है, ये कोई दीनी इज्तिमा नहीं है, ये दीनी तकरीब नहीं है, बल्कि ये मुल्की तकरीब है। और मुल्क की आज़ादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझकर नहीं बनाता, उसको मजहब का जुज़ समझकर नहीं बनाता, बल्कि एक मुल्की तकरीब है। एक मुल्क के अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुल्क हमें अता फरमाया, और ऐसा मुल्क अता फरमाया जिसकी तफसील मौलाना अजीजुर रहमान साहब ने बयान की है, तो वो हम एक मुल्क की तकरीब के तौर पर बनाते हैं। बिदअत उस वक्त बनती है कोई चीज जो शरीयत में ना हो और शरीयत का हिस्सा उसको बना दिया जाए, लेकिन ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं, ये कोई दीन का कोई दीनी तकरीब नहीं, दीनी ईद नहीं, दीनी मजहब नहीं, दीन का कोई मजहबी हिस्सा नहीं, लिहाजा ये एक मुल्की तकरीब है। और ये ऐसा है जैसे कि अगर कोई शख्स अपने घर के अंदर कोई किसी अपने घर की तामीर हुई और उस तामीर के ऊपर कोई इज्तिमा करे, कोई दावत करे, तो ये कोई मजहब की तकरीब नहीं है, कोई दीन की तकरीब नहीं है। इसी तरीके से हम यौम आज़ादी पाकिस्तान का इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से ये नेमत हमें अता फरमाई थी, और मुल्की तकरीब के तौर पर इसको मनाया जाता है। वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, ऐ लोगो बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक वाज़ो नसीहत वाली किताब आ गई, और ऐसी किताब है तुम्हारे सीनों में छुपे हुए जो बीमारियां हैं, यानी शिर्क की और जो गैर अखलाकी चीजें हैं, उन बीमारियों का इलाज है इस किताब में। वहुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हदायत है और रहमत है अहले ईमान के लिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, नबी इस्लाम इनसे फरमाइए कि ये जो अल्लाह का फजल है यानी कुरान और रहमत है, इस पे खुशियां मनाओ। ये तो जिसने कुरान के बारे में है तो वो तो कोई नहीं मना रहा, वो तो कहते हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, भाभी हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। लेकिन दलील तो इसी से लेते हैं ना, दलील से लेते हैं ना, तो जो असल चीज है पहले वो तो लेना, तो इसको भी इस्तेज़न ले लें, हमें कोई अर्ज नहीं है। वो ठीक है, आपने जो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 164 है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान है कि मोमिनीन में जो है वो एक रसूल को मबूस किया उन्हीं में से जो उन पे अल्लाह की आयत तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, अल्लाह का एहसान है। और जो सूरह अंबिया की 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको रहमत बनाकर भेजा तमाम जहान वालों के लिए, तो आप रहमत भी हैं, अल्लाह का एहसान भी है, ये इस्तेज़न जरूर लें। लेकिन असल चीज जो कुरान में डायरेक्टली आई थी वो कुरान के बारे में थी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, और हमारे नबी इस्लाम ने दोनों चीजों को एक जगह जमा कर दिया। सही मुस्लिम में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2750, आप पीर का रोजा रखते थे, पूछा गया क्यों रखते हैं हर मंडे का रोजा, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई, मैं उसकी खुशी में जश्न मिलाद भी मनाता हूं और जश्न कुरान भी मनाता हूं। तो ये दोनों जश्न मनाए ना, कुरान तो पढ़ना नहीं देते, कहते कुरान तर्जुमे से ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, दुश्मनी की हुई है ना। मेरा मसला नंबर 1 है यही है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउनज़िरकुम बिही वमन बलग, नबी इस्लाम फरमा दीजिए कुरान मुझे इसलिए वही किया गया इससे मैं आपको भी तबलीग कर दूं, जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो इसी से तबलीग करे, मौलवियों की लिखी हुई किताबों से नहीं, अल्लाह की नाजिल करता किताब से। तो मनाए जी, बिल्कुल पीर का रोजा रखें, 52 दफा मिलाद मनाए जी साल में, और 52 दफा जश्न कुरान मनाए, और कुरान पे अमल भी करें और नबी इस्लाम की सीरत पे अमल भी करें, दोनों चीजें पैरेलल में लेके चलें, ठीक हो गया। अरे भी सूरह मरियम आयत नंबर 33 में ईसा अलैहिस्सलाम के कौल से ईद मिलादुन नबी मनाने का इस्तदलाल करना कुरान हकीम की तारीफ करना नहीं होगा? यानी कि वो ज़्यादा डेविएट तो किया है, डॉक्टर तालुक कादरी साहब ने यानी इसको इनडायरेक्टली लिया स्पोर्ट में, वो बनता तो नहीं है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम में आता है ना कि उन्होंने उनका कलाम अल्लाह ने नकल किया, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, सलामती उस दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ की है कि अल्लाह मेरे पैदाइश का दिन भी सलामती का दिन हो, मरूं तो सलामती पे मरूं, और क़यामत वाले दिन भी मुझे सलामती नसीब हो। ये तो दुआ है, इसमें मिलाद वाला मामला घसीट के साबित करना, बोला मिलाद आप बनाए वो और तरीके है ना, मंडे का आप रोजा रखें, सही मुस्लिम 2750 फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, तो ये सलामती तो मतलब मांगनी चाहिए, हम अपने लिए नहीं मांगते। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम,
वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, जनाजे की जो दुआ है तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में, तो हम यही कह रहे होते हैं ना, अल्लाह ईमान पे मौत देना, इस्लाम पे मौत देना। यही ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, ऐ अल्लाह मुझे सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। तो वो अपने लिए सलामती मान रहे हैं। क़यामत का दिन, कोई सलामती का दिन, खुद तो सलामती का दिन तो नहीं है ना, अड्डी पसली को जड़ी है मुजरिमीन दी। सलामती का दिन मेरे लिए बना दे, मुझे अमन मिले। और आपको पता है बुखारी मुस्लिम में हदीस शफात है कि तमाम नबी भी उस दिन नफ्सा नफ्सी कर रहे होंगे। आखिर में किन के पास जाएंगे लोग? ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हर नबी अपनी लर्जिश का जिक्र करेगा। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे भी एक गलती हो गई थी, मैंने वो शजर खा लिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने 3 दफा तौरियतन झूठ बोला था। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझसे बंदा कत्ल हो गया था। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने अपने काफिर बेटे के लिए दुआ कर ली थी, तुम किसी और के पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आज मैं ऐसे शख्स को जानता हूं जिसको अल्लाह ताला ने अमन दिया हुआ है, आज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो सलामती है जो नबी अलैहिस्सलाम को मिली है, हदीस शफात में आती है। वो शफात का इज़्न है, आसा अन यबअतक रब्बुका मक़ामन महमूदा। ये आयत है सूरह बनी इसराइल की, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इमाम बुखारी इस हदीस को लेके आए हैं। मुस्लिम में भी हदीस है, मसला 88B है मेरा, मुकम्मल हदीस शफात के। लेकिन सूरह माइदा की आयत नंबर 114 में ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में ईद का लफ्ज़ बोलना क्या दुरुस्त है? ये तो मशहूर दलील है जो पेश करते हैं सूरह माइदा आयत नंबर 114। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा कि आप दुआ करें कि आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल हो। तो उसमें अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। अच्छा, ये इसमें माइदा का लफ्ज़ है। माइदा किसे कहते हैं? खाने को। और इसी की वजह से सूरत का नाम भी सूरतुल माइदा है। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ रब हमारे हम पर आसमान से माइदा यानी खाना नाजिल फरमा। माइदतम मिनस समाई तकूलू लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका, ताकि ये ईद का दिन बन जाए हमारे अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी, और तेरी तरफ से एक मौजज़ा और निशानी भी हो जाए। अब ये कोई साबित नहीं कि वो खाना नाजिल हुआ था या नहीं हुआ था या रोक दिया गया था, वो अलग बात है। अलबत्ता ईद का लफ्ज़ यहाँ पे बोला गया कि आसमान से खाना नाजिल हो, वो ईद का दिन यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको इस हवाले से डिक्लेयर किया। और इससे इज्तिहादन तो आप ईद मिलादुन नबी का लफ्ज़ बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई आयत या हदीस नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक के हवाले से मौजूद नहीं है। यानी एक दलाइल के तौर पर लिया जा सकता है। वो तो हम पहले ही कायल, आप यानी लुगत के मानों में बोलें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 5 के तहत 12 रबीउल अव्वल क्या अय्यामुल्लाह नहीं है? देखिए सूरह इब्राहीम की जो आयत नंबर 5 है, मशहूर है, मैं अक्सर इन्हीं तिलावत भी करता हूँ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया आप अल्लाह के बड़े बड़े जो फैसले के दिन है ना, इनके जरिए तबलीग करें अपनी उम्मत को। वो बड़े बड़े क्या है? वो कुरान में आए हैं। वो बड़े फैसले के दिन है जिस दिन कौम आद हलाक हुई, जिस दिन कौम समूद हलाक हुई, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के लिए भी वो बड़ा दिन बन गया जब फिरौन डुबोया गया। यानी जब अल्लाह की कुदरत के बड़े बड़े फैसले हुए, उनको कहते हैं अय्यामुल्लाह। बुखारी मुस्लिम में आता है ना कि यहूदी जो है वो रोजा रखते थे 10 मुहर्रम का। नबी अलैहि ने पूछा क्यों, तो कहा इस दिन फिरौन डुबोए गए थे, अय्यामुल्लाह में से। तो यकीनन यानी 12 रबीउल अव्वल भी अय्यामुल्लाह में से है। आपकी पैदाइश अय्यामुल्लाह में से एक यौम है, बल्कि आपकी हिजरत का दिन भी अय्यामुल्लाह में से है। वो आपके टेक ऑफ पोजीशन साबित हुई है। पिछले 13 साल के अंदर मक्की दौर में सिर्फ 125 बंदे मुसलमान थे, और हिजरत मदीना के बाद विद इन 13 ईयर्स 3 बरआज़मों में मुसलमानों की हुकूमत पहुंच चुकी थी। हम तो कहते हैं हिजरत का जो दिन था वो भी पीर का दिन था, दलाइल नबुव्वा में आता है इमाम बहीकी की किताब में। और रबीउल अव्वल का ही महीना था, वो भी अय्यामुल्लाह में दाखिल है। नबी अलैहिस्सलाम की यानी जिस दिन पैदाइश हुई है वो भी यानी एक अय्यामुल्लाह में से है। जिस दिन आप अलैहिस्सलाम पे पहली वही नाजिल हुई है वो भी अय्यामुल्लाह में से। वो सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है 2750 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। पूछा गया आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई, तो मैं उसके शुक्राने के तौर पर हर पीर को आप यानी जो जश्न कुरान और जश्न मिलाद मनाया करते थे, हर पीर को। सही मुस्लिम 2750 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या 12 रबीउल अव्वल मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? देखिए मैं आपसे सिंपल 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने रख, रिसर्च करना आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत हम करते हैं या सहाबा करते थे? सहाबा करते थे ना। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 2 साल अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत रही, तकरीबन 12 साल उमर बिन खत्ताब की खिलाफत रही, उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब की खिलाफत रही, और उसके बाद भी जो है ना बादशाहत का और खिलाफत का कुछ खिलाफत का इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह उनकी भी खिलाफत राशिदा ही थी। इस तरह से आज कोई भी नरेशन सही ऑथेंटिक नहीं मिलती कि वो 12 रबीउल अव्वल को लाइटें लगाते थे या देगे चढ़ाते थे और इस तरह से मनाते थे जिस तरह हम मना रहे हैं। एक भी ऑथेंटिक नरेशन नहीं मिलती। हमारा दीन मानने का दीन है, मनाने का दीन नहीं है। हमने इसको मनाने का दीन बना लिया और हम अब दिन मनाते हैं। शहादत को उस पर सोग मना रहे हैं और किसी की विलादत पे उसको जश्न मना रहे हैं। हमारा जो दीन है ना वो मानने का दीन है। हमारा जो रोज
کا ہے نا عمل, وہ اللہ کے نبی کی سیرت پہ ہونا چاہیے. ایوری ڈے آف آور لائف شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ بنائے. اور دیکھیں اسلام مکمل ہو چکا. جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی, اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم میں قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا. جو ہمیں عمل جنت کے قریب کرتا تھا اس کا بتا دیا, اور جو عمل ہمیں اللہ کے نبی جو عمل ہمیں جنت سے دور کرتا تھا اللہ نے بتا دیا اللہ کے نبی نے اس کا. Now the point is, جو لوگ یہ ان نئے نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں, they are trying to say کہ نہیں یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت کے قریب کرنے والا تھا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں, اور والعیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں. کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع کو بھی جو ہے جگہ چڑھانی اور صحیح رات جاگنا اور یہ کرنا, اور اس دن کو خاص کر لینا ہے. کسی بھی دن یہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن کسی دن کو خاص کر لینا کہ ہم اس رات کو جو ہے نا کنسیڈر عمل کریں گے, دس بیکمز این انوویشن. ایک اور بات دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ثابت ہے علی راجح. زیادہ علماء کا اور زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی, برتھ ہوئی, وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی, اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے. اس پہ تو اجماع ہے. تو مطلب انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے وسلم پیدا ہوئے اس دن. حالانکہ راجح موقف یہی ہے, کچھ علماء کے خلاف بھی ہے اس پہ, لیکن زیادہ جو راجح اور اوتھینٹک اوپینین وہ یہ کہ اللہ کے وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو وفات ہوئی, یہ تو سب کا اس میں اتفاق ہے. سو دا پوائنٹ از, ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صحابہ نے منائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے, کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسپٹ ون. سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون ہوگا ایک جو بچ جائے گا؟ ما انا علیہ و اصحابی, جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ بچے گا. یہ جو ایک گروپ ہوگا یہ بچے گا. اس کو کوئی نام نہیں ہوگا فلاں نام شافی مالکی امبلی, یہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, پھیلا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ٹائٹل نہیں ہوگا, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے. لیکن اب دیکھیں کیا صحابہ نے یہ چیز منائی؟ مجھے آپ نریشنز بھیجیں اگر آپ نے منائی تو. میں نے جتنا دین پڑھا اور علماء سے پوچھتے آج تک کسی صحابہ نے نہیں منائی, نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے, اور بعد کے اسلاف نے بھی نہیں منائی. یہ تو جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ 100 سال پہلے کا ہے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں سے بچیں. دین ماننے کا دین ہے ہمارا, منانے کا دین نہیں ہے. اور there are more answers to it, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے میں انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ختم کروں گا. تو کوشش کریں عمل وہ کریں جو اوتھینٹک سننا سے ثابت ہو, قرآن و حدیث سے ثابت عمل ہو وہ کریں. یہ جو اصل میں سنن ابو داؤد, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, مختلف احادیث کی کتابیں ہیں نا, ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور جو مانی جاتی ہے اس کا نام ہے سنن سنائی. اس میں کیا ہوتی ہے, وہ سنی سنائی باتوں پہ اس میں روایت ہے. بزرگوں نے کہا جی, فلاں لوگوں نے کہا جی, سنا ہے اور کہا گیا اور لکھا ہے کسی نے کہ ایسے کرو, اور ہم ایسے کرنا شروع ہوتے ہیں. تو سنن سنائی پہ عمل نہ کریں, بلکہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی پہ عمل کریں, اور صحیح احادیث انشاءاللہ اس کو اپنا دین بنائیں, اور ان چیزوں سے انشاءاللہ بچیں. ہمارا تو ہر دن ہی 12 ربیع الاول ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا تو ہر وقت ہی جو ہے نا ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہمیں گزارنا چاہیے. اچھا جی, ڈفرینٹ کوشچنز آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ کامنٹس بھی آ رہے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی دیکھیں گے, سبحان اللہ, یہ تو بات الگ ہے نا. ویسے بھی کسی رات کو اونچے اونچے اسپیکرز لگا کے اور ساری رات اونچا اونچا بولنا, کچھ بھی بولنا, اور ساتھ گلی محلے کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا, اور امیجن کہ بوڑھے لوگوں جن کو نیند نہیں آئے, وہ کیسا ہے؟ جو کہ آج کل ہو رہا ہے ہمارے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو پھر گاؤں کا کیا ہوگا؟ ساری رات جو ہے نا وہ پٹاخے بج رہے ہوتے ہیں اور شرلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹھا پھا ہو رہا ہوتا ہے, اور جن کو نیند نہیں آتی, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے اور وہ میلاٹونن اور ایسی دوائیاں کھا کے سوتے ہیں, وہ سبحان اللہ ان پٹاخوں سے ان کی نیند اکھڑ جاتی ہے. اینڈ دے فیل ڈسٹربڈ کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ محبت بھی جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دے کے بنا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت خراب ہے, نیت بہت صاف اور پاک, میری نیت سے زیادہ پاک ہے ان لوگوں کی نیت جو یہ مناتے ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں. لیکن نیت سے ضروری نہیں ہے, کسی عمل کی قبولیت کے لیے نا صرف نیت شرط نہیں ہے, بلکہ عمل پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا بھی شرط ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دو چیزیں نا عمل کی قبولیت کے لیے, ایک اچھی نیت اور ایک عمل. میں میری نیت بہت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں آج فجر کے 3 فرض پڑھوں, 2 کی بجائے, میری نیت اچھی ہے اور میں چاہتا ہوں پڑھوں, لیکن کیا یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دین ثابت نہیں ہے. اور اگر میں ایک سنت عمل پہ عمل کر رہا ہوں کہ میری نیت گندی ہے, وہ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ میری نیت لوگوں کو خوش کرنا تھی یا لوگوں کی پریز حاصل کرنا تھی. تو اس پہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں, ٹھیک ہے جی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دین کی روایت ہے اس کے اندر ایک نئی چیز کا اضافہ یا انحراف کا کوئی موقع یا امکان کے پہلو سامنے آتا ہے؟ دیکھیے, میں اپنا یہ ذوق بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں, اللہ کے رسول کے معاملے میں, دین کے معاملے میں ہمیں خود اللہ کے رسول ہی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی پر رہو, یعنی جو صحابہ کا طریقہ تھا. نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کے دعوے کرنے چاہیے, نہ صحابہ سے بڑھ کر کسی کو تعلق خاطر کا ادعا رکھنا چاہیے. وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو چیزیں دین سے متعلق ان کے زمانے میں ہوئی ہیں وہی ہم جاری رکھیں گے,
ظاہر ہے کہ وہ हुजूर के इज़्न से हुई हैं, अल्लाह के पैगंबर की हिदायत के मुताबिक हुई हैं, उन्हीं पर अमल जारी रखेंगे, उनमें कोई इजाफा नहीं करेंगे, कोई ख़राबी नहीं पैदा करेंगे। बाकी रह गई ये बात कि कोई आदमी इस पर खुशी महसूस करता है, वो कोई खैरात कर देता है, या इस मौके के ऊपर आप कोई मजलिस मुनक़िद करके उसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर देते हैं, उस पर कोई हरज की बात नहीं। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत बुलंद है कि आपको एक दिन की शख्सियत बनाया जाए। आप हर रोज़ की शख्सियत हैं, हमारे एक एक दिन की शख्सियत है, एक एक रात की शख्सियत है, ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ वाबस्ता है और आपके ज़िक्र को बुलंद करने का अल्लाह ने एहतमाम कर रखा हुआ है। हर 5 वक्त आप जानते हैं कि मस्जिदों से आवाज़ बुलंद होती है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आम शख्सियात से बिल्कुल मुनफरद, बिल्कुल बुलंद और अलग होना चाहिए, और उसके लिए उसका तकाजा यही है कि हर रोज़ आपका रोज़ हो, हर दिन आपका दिन हो, कोई एक दिन आपके लिए ख़ास नहीं किया जा सकता। ये मेरा ज़ौक़ नहीं है। ताहम जितनी चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दी हैं वो अगर शाइस्तगी से एक दायरे के अंदर हों तो उनमें किसी जगह भी कोई हर्ज नहीं। आप रोज़ ऐसी मजालिस मुनक़िद करें जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, आपके अखलाक लोगों को बताए जाए, आपकी तालीमात से मुतारफ़ कराया जाए, इसमें कोई मानी नहीं है। इसी तरह ख़ास इस दिन भी अगर कोई खुशी की का इजहार आदमी कर लेता है तो एक दायरे के अंदर उसको भी मरहूज़ रखा जाएगा, लेकिन इसको सहाबा किराम के तरीके के करीब रखना चाहिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, इसी तरह जितने बाकी सहाबा हैं उनको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया, कुव्वत दी, सल्तनत हुई। वो चाहते तो हंगामा बर्पा कर देते, जश्न मनाते, लेकिन ये तरीके उन्होंने इख्तियार नहीं किए। तो हमारे यहाँ जो दीन में त्यौहार मुकर्रर किए गए हैं दीनी लिहाज से, यानी दुनियावी एतबार से अब 10 त्यौहार मुकर्रर कर रहे हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं। दीन में जो त्यौहार मुकर्रर किए गए हैं वो 2 ही हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। ये किसने मुकर्रर किए हैं? ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए हैं। तो आपकी पैरवी में त्यौहार तो यही रहेंगे, बाकी किसी के जज्बात का इजहार, मोहब्बत का इजहार, ताल्लुक़ खातिर का इजहार, सीरत का बयान, लोगों की तालीम, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई एतराज़ नहीं। इससे आगे बढ़कर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो सहाबा किराम के तरीके से हमें हटा दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की तालीम यही है कि अपने दीन को ठीक उस जगह पर कायम रखो, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैंने और मेरे सहाबा ने ज़िंदगी बसर की। लेकिन ईद मिलादुन नबी की कोई नमाज अदा करता है और कहता है कि फलां जगह फलां वक्त में 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे ईद मिलादुन नबी की, तो फिर दीनी शरीयत लिहाज से इसका क्या हुक्म? ये बिल्कुल बिदअत होगी, इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। और रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मेरे दीन में जिसने भी कोई नई बात ईजाद की वो सरतसर गुमराही है और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, उसका अंजाम जहन्नम है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। यही चीज़ सूरह आराफ में बयान की है, जहाँ 5 उन चीज़ों का जिक्र किया है जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है, उन बुनियादी चीज़ों का। तो उसमें यह बता दिया गया है कि अन्तकुलू अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह की निस्बत से कोई ऐसी बात न करो कि जिसको तुम नहीं जानते। अगर कोई नमाज इस दिन पढ़ना होती तो अल्लाह के रसूल उसको शुरू करते, कायम करते। खुद आपका क्या तरीका था? अगर लोग उसको इख्तियार करें तो कितनी पाकीज़ा बात है कि लोगों ने पूछा कि आप पीर का रोज़ा रखते हैं, तो फरमाया कि हाँ इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी। तो अगर लोगों ने इस याद को कायम रखना है तो ऐसा क्यों ना करें कि इस दिन रोज़ा रखें। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी होगी, पैरवी भी होगी। मैं जो बुनियादी बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, उनके तरीके ही पर कायम रहने का नाम दीन है। दीन में उससे आगे कुछ नहीं। रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत बाअज़मत, और इसकी मुनासबत मिलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह मिलाद इमाम शशम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तमाम दुनिया में ये माँ एक तक़द्दुस रखता है, एहतराम रखता है, इसमें अक़ीदत का इजहार किया जाता है। और ख़ुसूसन इसके अंदर जो अयाम हैं दरमियानी 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ता वहदत और अयाम वहदत व अशरा वहदत है। पूरी उम्मत इस्लामिया इंशाअल्लाह इस माह को जहाँ मिद्दत व अक़ीदत रसूलुल्लाह में गुजारते हैं, इसी तरह वहदत के ऊपर ताकीद के साथ गुजारें। चूँकि दुश्मन का हरबा तफरका है, मुसलमानों के अंदर एक दूसरे की नफ़रत है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जज्बात उबारना है। और ये अयाम हैं जो मुमिनीन और मुस्लिमीन तमाम इस उम्मत के वहदत के लिए अगर शिआर ही की हद तक हो तो भी बहुत मुअस्सिर है। चूँकि निदाए कुफ्र और निदाए तागूत के ख़िलाफ़ जो निदा उठती है उसकी भी एक अहमियत होती है, उसकी तासीर होती है। उनका तफरक़े का शिआर है, नफ़रत का शिआर है, और उन्होंने ये नफ़रत के बीज बोए हैं। उसके मुकाबले में मुमिनीन का फ़रीज़ा है कि वो वहदत की काश्त करें। और वहदत कुरान का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, ये कोई सियासी टेक्टिक नहीं है बल्कि हुक्म खुदा है और फरामोशुदा हुक्म है जिसको भूल गई है उम्मत। और इसके बग़ैर दावा ये ईमान करना, वहदत के बग़ैर, उम्मत के बग़ैर, ये मशकूक दावा है, काबिल कबूल नहीं है, मुमकिन है ठुकरा दिया जाए। जैसा कुरान ने नमूने पेश किए हैं, जो लोग आए हैं
अरकान ईमान पूरा किए बगैर दावा ईमान किया है, उन्हें कुरान ने ठुकरा दिया है। हर जगह इंशाअल्लाह मोमिनीन हर शहर के अंदर, हर आबादी के अंदर तकरीबात मुनाकिद करें, महफिल मुनाकिद करें, और बिलखुसूस जिस तरह सारे मुस्लिमीन मिलाद की रैलियाँ निकालते हैं उसका भी अहतमाम करें, उनके साथ शामिल हो जाएं या अलग से अपने तौर पर इंशाअल्लाह ये अहतमाम करें। यहाँ भी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि मोमिनीन सब मिलकर करें, बाहर आएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क व अक़ीदत व इरादत व ताख़ुद का सबके सामने बरमला इजहार करें, सबके सामने इंशाअल्लाह, ताकि इस मुल्क के अंदर जो ममलिकत रसूलुल्लाह है, ममलिकत दीन है, ममलिकत कुरान है, ममलिकत है अल्लामा इकबाल की, वो वाक़ईन नाम रसूलुल्लाह से मुनव्वर और उम्मत रसूल की वहदत और यकानगत और उख़ुव्वत ये बेहतरीन दुरूद व सलाम व हदिया है जो इन अय्याम में उम्मत रसूलुल्लाह को पेश कर सकती है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे हम बहुत खुश होते हैं जो महफिलें करते हैं और उसके अंदर जो तरन्नुम होता है और जो समा बनता है, जो बशारतें होती हैं, वो सारी हमारी खुशी है। एक काम ऐसा भी करें हम कि जिससे रसूलुल्लाह की खुशी भी फराहम हो जाए, और रसूलुल्लाह की खुशी उम्मत की वहदत में है, उम्मत की उख़ुव्वत में है, उम्मत के भाईचारे में है। उस तरफ जो कदम उठेगा वो हर नात से ज़्यादा मुअस्सर होगा, वो शेर, वो शिआर जो वहदत के लिए बुलंद होगा, वो हर मनक़बत से ज़्यादा काबिल कबूल होगा और उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होगी महज उन कलमात से जो सिर्फ अक़ीदत रखते हैं अपने अंदर। वो जो अक़ीदत से भी निकले और वहदत की भी ज़बान हो, रसूलुल्लाह की ज़बान हो, उसका अजर ज़्यादा होगा। ये सवाल इस तरह आया सोशल मीडिया पर है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में कमोबेश 63 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया है या होगा, जो भी ये लिखना चाह रहे होंगे। कहते किस हदीस से ये साबित है कि आपने अपनी विलादत का दिन मनाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हर महीने में 4 दिन मनाते थे। हर महीने में रबीउल अव्वल में भी और हर महीने में। वो इशू मतलब हदीस शरीफ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। जब आपकी खिदमत में पूछा गया इसकी वजह, तो एक वजह ये बताई, फ़ीही वुलिदतु, इसी दिन मेरी विलादत हुई है, यानी हर पीर को आपका बर्थडे, तो ये रोज़ा आप रखते थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वैसे ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आप बोलते हैं रबीउल अव्वल तो ये हर महीने 4 दिन, तो ये उनको समझाओ ना जो सालगिरह मनाते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, औरतें मर्द जमा होकर केक काट के वो तालियां बजाते हैं, बच्चे के लिए तोहफे वसूल करके ढेर लगाते हैं, गिफ्ट पैक जमा करते हैं, उनको बोलो ये ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जो दिन है वो 10 मरतबा तकरीबन आया। तो क्या किसी हदीस से, यानी जो इनकी सीरत है उसमें ये है कि हज़रत उमर का दिन मनाया हो उन्होंने, या हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला का दिन मनाया हो? कहीं भी ऐसा नहीं। और आज एतराज़ करने वाले खुद इसको मनाते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में तकरीबन 6 साल तक इन तीनों के अय्याम आते रहे, किसी ने भी नहीं मनाया, लेकिन मनाए जा रहे हैं। रमज़ान शरीफ जो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में जब इसका ऐलान हुआ, बाकायदा रोज़े फ़र्ज़ हुए 2 सन हिजरी के अंदर, उसके बाद 9 मरतबा रमज़ान मौजूद रहा। क्या उसमें कभी ऐसा हुआ कि तरावी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दरस कुरान देते हों? ऐसा कभी नहीं, लेकिन हर जगह पे हो रहा है। तो इनमें किसी चीज़ को एतराज़ का जो है वो मौका नहीं, किसी पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ होना है तो फ़कत इस तरह के शैतानी ख़यालात के ज़रिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफत में इतनी मरतबा आया, हज़रत अबू बकर के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत उमर के दौर में इतनी मरतबा आया, तो हज़रत उस्मान गनी के दौर में इतनी मरतबा आया, हज़रत अली के दौर में इतनी मरतबा आया, उन्होंने मनाया। तो ना मनाने का भी कोई सबूत नहीं है। और किस तरीके से मनाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलकर ही उन्होंने मनाया होगा रोज़े रख कर। लेकिन इसी तरह के बहुत सारे उमूर हैं जो उस दौर के अंदर आए लेकिन उन्होंने नहीं किए, आज हमारे दौर में वो हो रहे हैं, और वो दीनी काम है जो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ ये नहीं होता। दस्तारबंदी के जलसे हो रहे हैं, ख़त्म बुखारी हो रहे हैं। बुखारी शरीफ तो न सहाबा के दौर में थी, न ताबईन के, न तबे ताबईन के, तो बाद में तो हर दौर, यानी कि जो मिलाद शरीफ नहीं मनाते वो भी दस्तारबंदियाँ teach us how the Almighty wants to be worshipped. So if anyone comes up with an act of worship that was not taught by the Messenger, peace be upon him, he has directly insulted the Messenger, and he has also directly insulted Allah subhanahu wa ta'ala. The reason is, what was the point of sending a messenger? To teach us how to worship Allah when we think we know better than him. May Allah protect us. And sometimes people get so upset when we tell the people not to do things which were not done by the messenger. They think perhaps you belong to a sect that is deviant. May the Almighty protect us. There is no deviance in a sect that calls towards
obeying the instruction of the messenger and abandoning anything in terms of acts of worship that he has not taught. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us goodness. The messenger has said on many occasions, I leave with you two things. For as long as you hold fast upon them, you will never be led astray. That is the book of Allah and my traditions, my way. Brothers and sisters, if you take a look at Surah Al-Kahf, towards the end, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the biggest losers, those who do lots of deeds and they think they are doing good deeds, but at the same time they have not followed the messenger's path and way, and this is why they have lost. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tell them, should I inform you of the one who is the greatest of losers, or those who are the greatest of losers of their deeds? People who have spoiled their deeds completely. They are those whose struggle was always astray. They neither followed the path of the messenger. They did deeds, acts of worship which were not taught, not done by the messenger, may peace be upon him, and they thought that they were doing good. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beloved brothers and sisters, never ever think that there is a single act of worship that the messenger forgot to teach us. Never ever think that there is any act of worship that you may engage in that would be better than what the messenger has come with, and never ever think that the messenger has not done the deeds which were enough for us to follow, so now we need to come up with a new deed and a new act of worship that would result in the spoiling of your deeds. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us. Brothers and sisters, Islam is very easy. It is us sometimes who add the salt and pepper to our religion in order to try and decorate it with innovation, not realizing innovation can never decorate your cake, but instead it will make it unpalatable, that which can never be consumed. May the Almighty protect us from innovation of every. थोड़ा सा आपकी पैदाइश को बयान करता हूँ, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को आप तशरीफ ले, जमहूर का कौल 12 रबीउल, और भी अक़वाल हैं, लेकिन यानी जमहूर उलमा, तमाम दुनिया के अक्सर उलमा 12 रबीउल अव्वल ही को आपका मौलिद करार देते हैं। 8 का कौल भी है, 9 का कौल भी है, 10 का भी है, लेकिन जमहूर उलमा अरब व अजम 12 पर अक्सर का इत्तेफाक है। लिहाजा इसी को ही सारी दुनिया में खुशी का दिन समझा जाता है, बनाया जाता है, मनाया जाता है। तो मैं चूँकि अक्सर सफ़र में होता हूँ, ये बहुत अरसे के बाद पहला मौका मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना 12 अव्वल मुख्तलिफ मुल्क में हर जगह अल्लाह के फजल से लोगों को देखा, बड़े ज़ौक़ शौक़ से। कुछ 6 माह हो चुके हैं। 22 अप्रैल 571 ईस्वी और सुबह के 4:20। ये 4:20 मैं इसलिए कहता हूँ कि 22 अप्रैल को मक्का में सुबह सादिक कुछ 4:20-22 पर होती है। पहले से ऐलान हो रहे हैं कि हमारे नबी आ रहे हैं मिन अनफुसिकुम, कबीला कुरैश में से आ रहे हैं और सबसे आला ख़ानदान हाशिम में से आ रहे हैं। तो आपके पास उस वक्त शिफा बिनत अस्वद, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा हैं। ये बतौर दाया के, लेडी डॉक्टर के, हज़रत आमना के साथी, आमना बिनत वहब बनु ज़ुहरा में से हैं। तो आपकी पैदाइश सुबह सादिक के वक्त है, आप पैदा हुए, सारा कमरा खुशबू से भर गया, और आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं शिफा बिनत अस्वद, वो भी बाद में ईमान लाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो हैरान होकर देख रही कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। बच्चे पैदा होते हैं, अपने साथ कितनी माँ के पेट से चीज़ें उनके ऊपर लगी होती हैं, आप धुले हुए साफ सुथरे बाहर तशरीफ़ लाए। नाफ और आंत मिली होती है, फिर उसको काटा जाता है। वुलिद मख्तूनन मख्तू अस्सुर्रा, आपकी नाफ कटी हुई थी, आपका खतना माँ के पेट से हुआ था। साफ पाक पवित्र पैदा हुए। वो देख के हैरान हो रही और आमना को दिखा रही, वो भी हैरान हो रही। तो माँ के पहलू में लटाया, तो जो ही पीछे हटी तो आपने करवट बदली, पूरे सजदे में गए, फुल सजदा किया लंबा। माँ भी डर गई, दाई भी डर गई। फिर उसके बाद दोनों हाथ का सहारा लेकर यूं पूरी छाती ऊपर उठाई और उल्टे हाथ का सहारा लेकर सीधा हाथ उठाकर शहादत की उंगली को आसमान की तरफ बुलंद किया, तो एकदम नूर ही नूर फैल गया चारों तरफ। और हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने ईरान के, शाम के, हीरा के महल देखे। तो डर गई, बच्चे को उठा के गोद में लिया, तो एकदम सारे कमरे में एक धुंध भर गई। जैसे आजकल धुंध है, 2 फुट पे नजर नहीं आता, सारे कमरे में धुंध भर गई और करीब गोद का बच्चा नजर नहीं आ रहा। धुंध में से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, इस बच्चे को मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब सब फिरा दो, लियारफू बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, ताकि कुल कायनात जान ले इनकी ज़ात को, इनके नाम को,
ان کی صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے, ورنہ بھٹک جائیں گے, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. وآتوہ خلق آدم, انہیں آدم کے اخلاق دو, ومعرفت شیث, اور شیث کی معرفت دو, وشجاعت نوح, اور نوح کی معرفت دو, وخلت ابراہیم, ابراہیم کی دوستی دو, واستسلام اسماعیل, اسماعیل کی قربانی دو, وفصاحت صالح, صالح کی فصاحت دو, وحکمت لوط, اور لوط کی حکمت دو, وبشرا ورضا اسحاق, اسحاق کی رضا دو, وبشرا یعقوب, اور یعقوب کی بشارت دو, وجمال یوسف, یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو, وشدت موسیٰ, یوسف کا جمال دو, موسیٰ کا جلال دو, وطاعت یونس, یونس کی طاعت دو, ولحن داود, داود کی شیرین زبان دو, وقلب ایوب, ایوب کا دل دو, وعصمت یحییٰ, اور یحییٰ کی پاک دامنی دو, وزہد عیسیٰ, اور عیسیٰ کا زہد دو, علیہم الصلوات والتسلیمات, واغمسوہ فی اخلاق النبیین, اور تمام نبیوں کے اخلاق میں, اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں, ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے. یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا, تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا, یہ آپ کی آمد ہے. زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا. ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی, ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے, تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا. تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی, اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی. ایک دم آگ بجھ گئی. ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض, اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا, اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں. ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے, اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے. اس نے صبح صبح شور مچایا, بھائی آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے, کہاں فلاں کا بیٹا پیدا ہوا, تو اس کباب زندہ ہے, کہاں زندہ ہے, کہ نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو, کہاں عبد المطلب کا پوتا ہے, مجھے دکھاؤ. تو جب آپ کو لایا, آپ کے چہرے پہ نظر پڑی, تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت, تو اس کی چیخ نکلی, ویل لبنی اسرائیل, ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل, لقد خرجت النبوۃ منہا, آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی, بنو اسرائیل سے نکل گئی. لقد رحتم بہا یا معشر قریش, اے قریش تمہیں مبارک ہو, یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی. کائنات میں غلغلہ مچ گیا, سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی. ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا, اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا, آگ بجھ گئی, ادھر 14 برج گر گئے, یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو. تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا. اس نے بات سنی, کہا جی میرا علم اتنا نہیں, میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں. اس کا نام تھا سطیع. شام پہنچے, وہ اس وقت نزا کی حالت میں تھے. تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں. ان کی آنکھ کھلی, دیکھا, ان کے بتائے بغیر فرمایا, ہاں تو اس لیے آیا ہے جیت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان, تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے. کہا ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں. فَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحِرَابَ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَ وَقَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَ فَلَيْسَ الشَّامُ لِلسَّطِيحِ شَامًا وَلَيْسَ فارس لعبد المسیح مقامہ, کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا, آپ لاٹھی رکھتے تھے, لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے, تو پھر شام سطیح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا, اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے. یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے. ابھی کسی کو نہیں پتا, یتیم پیدا ہو رہے ہیں. عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک میرا بیٹا چلا گیا ہے, اس کو بیٹا عطا فرما, تاکہ اس کی نشانی باقی رہے. انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں, وجہ کائنات آ رہے ہیں, سبب کائنات آ رہے ہیں, اللہ کی محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں, جن کا نام اللہ خود رکھیں گے, محمد و احمد. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. اور قرآن میں جاؤ تو شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, عزیز, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, المزمل, المدثر, طٰہٰ, یاسین.
एक किताब है मेरे पास जिसमें 1177 नाम अल्लाह के नबी के लिखे हुए हैं। 1177 नाम। 1177 भी थोड़े हैं, जिनकी सिफात की कोई हद ना हो उनके लिए 1177 छोड़ 11 लाख हों तो भी वो थोड़े हैं। तो ये तो वह हैं जो उलमा ने जमा किए मुख्तलिफ जगहों से, पुरानी किताबों से और मुख्तलिफ उसके मसादर माखज़ से। तो मिन अनफुसिकुम को बता रहा हूँ, मिन अनफुसिकुम, ऐसे पैदाइश में ऐसे गैबी निज़ाम, हस्ती में ऐसे गैबी निज़ाम, ज़ात में ऐसे गैबी निज़ाम, अखलाक ऐसे आलीशान, ज़ात ऐसी आलीशान, और ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजाया, अखलाक आली, सखावत आली, मोहब्बत आली, दरगुजर आली। जाहिर है कि जिस तरह मुरत्तब और जलसे इस तरह आजकल होते हैं, दौरे रिसालत माब में इस तरह का तो रिवाज था ही नहीं। अब जितने भी मसालिक और मज़हब के अंदर होते हैं, प्रोग्राम हैं, जलसे हैं, तकरीबात हैं, जुलूस हैं, तो इस तरह का स्टाइल उस दौर में तो यकीनन था नहीं। मरूद ज़माना के साथ जो ये चीज़ें आ गई, लेकिन रूह अगर वही है तो इख्तलाफ नहीं है। बाकी इस उन्वान से बैठे हों, बात की हो, तो ये सही हदीस से साबित है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवियात से है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो सहाबा बैठे हुए थे, तो बैठ करके वो उनका बाहमी किसी उन्वान से गुफ्तगू का, जलसे का स्टाइल था। बल्कि हदीस के लफ्ज़ हैं कि हुज़ूर आए तो फरमाया मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे इस जुलूस का, बैठने का, जलसे का क्या मकसद है? तो सहाबा ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। हुजूर हमारे बैठने का मकसद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बोल रहे हैं, उसकी सना कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत इस्लाम दी और आपकी सूरत में हमारे ऊपर करम फरमाया। व मन्ना अलैना बिका, आपकी सूरत में हमारे ऊपर करम किया। और अगर इसको हज़रत हसन बिन साबित के लहजे में देखना चाहो तो उनके लफ्ज़ ये हैं, मन्ना अलैना रब्बुना अम बाअसा फीना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान किया है कि मोहम्मद अरबी अता कर दिया। और अगर इसका उर्दू में मंजूम तर्जुमा चाहो तो यही तर्जुमा होगा, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मन्ना अलैना रब्बुना अम बाअसा फीना मुहम्मदा। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी सूरत में हमारे ऊपर एहसान किया है। जब सहाबा ने ये बात कही तो हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते, कहते कि अच्छा काम है, और अगर अच्छा नहीं था तो रोक देते। लेकिन हुजूर फरमाया क्या सहाबा तुम इस बात पे कसम उठा सकते हो कि इसीलिए बैठे हो? तो सहाबा को हैरत तो हुई होगी कि इस बात पर कसम लेने का क्या मकसद है। लेकिन हुजूर ने कहा तो उन्होंने बरजस्ता अर्ज की, हुजूर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं इसीलिए बैठे हो। हुजूर ने बाकायदा हदीस में आता है, मुस्लिम की रिवायत है, सुनन निसाई में है, बाकी कुतुब हदीस में है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे कसम मांगी, मुझे कसम दो कि तुम इसीलिए बैठे हुए हो। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं हम इसीलिए बैठे हैं। तो हुजूर ने कसम मांगी उनसे और उन्होंने सब ने बाकायदा कसम दी, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में अल्लाह ने जो हमारे ऊपर इनाम किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो जब सहाबा से बाकायदा हुजूर ने कसम ले ली और उन्होंने कसम दे दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा मैं तुमसे जो कसम ली है वो किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं ली, कोई शक नहीं था तुम्हारे कौल की सदाकत पर कि मैंने कसम से तस्दीक चाहिए हो, बल्कि माजरा कुछ और था। और वो क्या था कि मैं हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन आए, तुम बाहर बैठ के मजलिस कर रहे थे और मैं हुजरे में बैठा हुआ था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, और मेरे पास जिब्रील अमीन आए, फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, मुझे जिब्रील ने आके खबर दी, ऐ सहाबा तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में फख्र कर रहा है, तुम्हारे इस अमल पर, फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है, फरिश्तों में फख्र कर रहा है कि मैंने इनको एक नेमत दी थी, कितने कदरदान हैं कि अब भी बैठ के उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मुझे बताइए आज अगर मैं और आप बैठ जाएं और जमा हो जाएं, चलो बैठने की जगह पर चरागा भी कर लें, नीचे अच्छी चटाइयां भी बिछा लें, अब इतनी आवाजें नहीं है कि जोर से बोलकर आखिरी शख्स तक आवाज पहुंचाई जाए, चलो सहूलत के लिए लाउड स्पीकर भी लगा लें, कोई दूर नजदीक से लोग आए हैं उनके लिए कोई खाने का शीरीनी का इंतजाम भी कर लें, तो इसमें क्या कबाहत होगी? ये क्या बिल्कुल उसी मजलिस का तसलसल दिखाई नहीं देता? हाँ अगर जिद है तो इस पर बड़ी बातें की जा सकती हैं और की भी जाती हैं, लेकिन अगर जिद नहीं है, इंसाफ की नजर से देखा जाए तो अगर इसी उन्वान से मैं बैठता हूं और आप बैठ जाएं और हम जो है वो अपने रिस्क से उसके लिए कोई दोस्तों के लिए एहतमाम भी खाने का कर लें और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अनुमान छेड़ लें, फजाइल व मनाक़िब की बातें कर लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आखिरी जुमला, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की वजह से खुशी मनाओ, मीलाद मनाओ। दुनिया में रसूल इंसो जहां आते हैं
मनाओ, ऐ मुकद्दर वालों, सुल्ताने रसूलाने जहां आते हैं। अल्लाह ताला वो इल्म अता फरमाए जिसमें ज़ौक़े मुस्तफ़ा हो, इश्क़े मुस्तफ़ा हो, आपकी लगन हो, दिल आपकी याद में मगन हो। समझ आई? वो इल्म अता करे, वो ज़ौक़ अता करे और आपकी तालीमात पर भी चले। मकसद मिलाद मनाने का ये भी है कि हम आपकी तालीमात को आम करें, जो आप पैगाम लाए कुरान और सुन्नत का, उस पर अमल भी करें, उसको समझे भी सही। सिर्फ ये भी नहीं है कि हम लाइटिंग कर दें और ये सारा जो रूह है आपकी बिरसत की, आपकी तशरीफ लाने की, उसको भूल जाएं, ये भी गलत बात है। अमल करें आपके इरशादात पर, कुरान की तालीमात पर, फिर अंदर भी रोशन करें और अपने मकानों को भी रोशन करें। मजा फिर आता है जी? दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, मजा फिर आता है। बाहर रोशनी और अंदर अंधेरा हो, ये नहीं। पहले दिल को कमली वाले के अहकाम के अमल करने से मुनव्वर करो, कुरान और सुन्नत की तालीम पर चलकर दिलों को मुनव्वर करो और फिर बाहर को, पहले बातिन को, फिर बाहर को, ज़ाहिर को मुनव्वर करो। और आखिर में एक जुमला सिर्फ 3 दफा पढ़ूंगा, मेरा ज़ौक़ मुझे मजबूर कर रहा। फिर इसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। मेरा ख्याल है 2.5 घंटे बोल गया और ये सरकार का करम था, आप लोगों की मोहब्बत थी, उलमा और मेरे सामीन का बाज़ौक़ लोगों की ये समात, हुस्न समात है कि मैं इतनी देर बोला। और मैं 2.5 घंटे हो गए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक मेरे सामीन उसी तरह खड़े हैं। देखें, ये सरकार का करम देखें, और मैंने कोई ऐसी बेज़ौकी बात नहीं की, वरना मेरे मजमे से लोग उठ जाते हैं। इनको नई चीज मिली है, कुछ मिला है भाई, आप कुछ मिला है तो खड़े हैं ना, बैठे हैं ना। तो कमली वाले की जाली के सामने भी कुछ मिलते हैं तो लोग जाते हैं, लोग खड़े होते हैं। आप अगर यूं खड़े हैं, यूं नहीं खड़े, कुछ सुनने के लिए खड़े हैं, कुछ इल्मी दौलत लेने के लिए। जो नबूवत का जमाना है, क्या 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में मेरे आका ने कभी ये दिन मनाया है कि नहीं मनाया? कहते हैं तुम गुस्ताख हो, सवाल क्यों पूछते हो? हमने कहा माफी मांग लेते हैं, लेकिन इतनी बात तो बतला दो कि नबी के बाद इस कायनात के अंदर कोई नबी का दोस्त भी हुक्मरान रहा है कि नहीं रहा है? कभी नबी के यारों की भी हुकूमत आई है कि नहीं आई है? कभी नबी के दोस्तों का भी इख्तियार हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि सिद्दीक नबी का कुछ लगता था और वो 11 हिजरी को हुक्मरान हुआ, 13 हिजरी को उनकी वफात हुई, तो इतना तो बतला दो 2 बरस ये दिन उनकी जिंदगी में आया है कि नहीं आया है? और फिर बतला दो कि फारूक के बारे में तुम्हारी राय क्या है? 10 बरस, सन 13 से लेकर 23 तक, 24 तक वो भी हुक्मरान रहा है 11 बरस। क्या उसकी जिंदगी में भी ये दिन कभी आया है कि नहीं आया है? फिर 12 बरस, उसके बाद नबी का अपना दामाद, 2 बेटियों का शौहर उस्मान हुक्मरान रहा है। क्या उसके दौर इख्तियार में भी कभी यह दिन आया है कि नहीं आया है? फिर उसके बाद उनकी छोटी बेटी का शौहर और उनके बेटों का बाप, हसनैन का बाप अली मुर्तजा 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हुक्मरान रहा है। 5 साल उसके जमाने में भी यह दिन आया है कि नहीं आया है? उनके बाद खुद उनका अपना लख्त जिगर, अपना नवासा हसन 8 बरस हुक्मरान रहा। उनके दौर में भी रबीउल अव्वल गुजरा, क्या उन्होंने भी ये दिन मनाया है कि नहीं मनाया? यारो, हम अपने लिए तो नहीं लड़ते, हमको मुजरिम कह दो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो तो सही कि तुम्हारी सितमगरी किन किन लोगों पे असरअंदाज हो रही है। अगर यह दिन न मनाना जुर्म है तो बतलाओ कयामत के दिन सिद्दीक को क्या कहोगे, फारूक को क्या कहोगे, उस्मान को क्या कहोगे, हैदर करनाल को क्या कहोगे, नबी के बेटे हसन को क्या कहोगे? इन पर कौन सी पर्दे जुर्म लगाओगे? जाओ, अगर तुम ये कहो कि हम भी उसी जुर्म के मुर्तकिब जिसके ये मुर्तकिब थे, तो हमारे नसीबे का क्या कहना कि हम भी उसी सब में खड़े हो जिस सब में सिद्दीक और फारूक खड़ा हो। फिर इससे बड़ी हमारे नसीबे की बात है। लोगों, आओ इंसाफ की बात करो। आज तुम्हारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि मामूली बातों को, उन बातों को जिनको तुमने खुद तराशा है, न कुरान में जिनका जिक्र, न मोहम्मद के फरमान में जिनका तज़किरा, उन बातों पे लड़के उम्मत को बांट रहे, उम्मत में तफरीका पैदा कर रहे,
इत्तेहाद की जरूरत है, आज उम्मत को इत्तेफाक की जरूरत है।